It was around September this year that the residents of Kuwari village in Uttarakhand first alerted the authorities about a landslide dammed lake that had developed near their village. The residents were afraid that this lake was rapidly and visibly increasing in size and was running the risk of breaking its embankment, causing the risk of flooding in the districts downstream. Nearly 2 months after the first warning bells were sounded off by the residents, the authorities of the state have now learned that there are more such landslide dammed lakes that are coming up across the mountains of Uttarakhand. Hello and welcome to The Print. My name is Soumya Pillai, and for this feature, we will be going across Uttarakhand to understand how these landslide dammed lakes have become a ticking time bomb for the authorities, which are racing against time to manage it. Landslide lakes are formed in the craters left after a landslide with water from glaciers or large rivers that have been cut off. As they increase in size, they run the risk of breaching their embankment, which is mainly loose soil, gravel, and mountain rocks. Residents here are worried that such a fate is inevitable, and before a disaster strikes, the authorities must intervene to safely drain the water from these lakes. हाँ हाँ, प्रशासन का आज मतलब प्रशासनिक लोग आए, कह रहे हैं कि विस्थापन होना है यहीं खाली ताल के ऊपर। उनका कहना है कि 4-4 लाख रुपया मतलब उसकी स्वीकृति बताई गई, 4,25,000 रुपया। न जाने वो केंद्र से सरकार से है या राज्य सरकार से है, इसकी बात की हमको कोई जानकारी नहीं है। 2013 से लोग यहाँ पर परेशान हैं। 2 टाइम की अपनी दाल रोटी के लिए यहाँ का आदमी संघर्ष कर रहा है, जूझ रहा है। काम भी आता है, ऐसे रोडों राडों का बाहुबली लोग आते हैं, अपने लेबर लोग नेपाल के से ले आते हैं, तो नेपाली लोग यहाँ पर काम करते हैं। हमको दिन में मतलब मजदूरी करने को नहीं मिल पाती यहाँ पे। यहाँ का आदमी आने वाले 21वीं सदी का नौजवान है, पढ़ा लिखा युक्ति योग है, दर दर की ठोकरें खा रहा है इस गाँव में। ना कोई रोज़गार है, ना रोज़गार है, और न ही कोई मतलब यहाँ मतलब राज्य सरकार का अधिक ध्यान है, ना ही कोई केंद्र सरकार का। हाँ में हाँ मिलाते जाते हैं प्रशासनिक लोग। तो हम तो अनपढ़ लोग हैं, गरीब किसान परिवार से हैं हम लोग। हमको तो मतलब कुछ कहने का मतलब कहने भी नहीं देते हैं, हमारी बात दबाई देते। बोला तो चुप रहे, तू क्या जानता है। हाँ हाँ हाँ, जो अभी से मतलब 10 से 15 साल जो उत्तराखंड में दैवीय आपदाएं, ये रोडें कटने से भूस्खलन हो गया, वज्रपात हो गया, आकाशीय बिजली गिरना हो गया, और मौसम के बारे में भी हमको कोई जानकारी नहीं रहती। मौसम के बारे में भी यहाँ का जलवायु पूरा परिवर्तन हो चुका है। पहले बर्फ़ पड़ती थी, अब कोई बर्फ़ भी नहीं पड़ती है। अब फसल भी जो बोते हैं तो वो सूखा पड़ जाता है। ना हमारे पास कोई प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना का डिस्कवर भी कुछ नहीं है। हाँ, उस बात को हम जानते ही नहीं हैं। बोलते हैं पीएम किसान सम्मान निधि आते हैं, तो वो कभी आती है, कभी नहीं आती है। तब केंद्र से मतलब प्रधानमंत्री जी डालते हैं। तो ऐसी है हमारी ज़िंदगी में, मतलब 2 टाइम के लिए दाल रोटी के लिए जूझ रहा और जूझते रहना पड़ रहा है। On my right side, you see a crater in the mountain which was caused by two subsequent landslides which have happened in the year 2013 and 2018. The residents here tell us that over a course of the last 10 years, there has been a certain lake that is being formed in this area, which has been formed because of melting of the glaciers and the landslide debris blocking it and making it a separate water body. The risk in this case is that if the debris breaks, if the boundaries of this lake break, there's going to be a catastrophic flooding throughout the districts in the downstream, which are at least 7 districts which are going to be affected. The residents have made appeals to the revenue department and other government officials to conduct surveys in these areas to ensure that there is safe passage of water so that no disaster happens in the coming years. उत्तराखंड प्रदेश के अंदर बहुत सारे लैंडस्लाइड हुए हैं। आपने देखा है केदारनाथ का भी जो आपदा, जोशीमठ में, वैसे कपकोट भी आपदा वाला क्षेत्र है जो हिमालय क्षेत्रों के नियर अबाउट जो लोग रहते हैं। तो काफ़ी गांव हमारे लगातार धंस रहे हैं, आपदाएं आ रही हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी लगातार प्रयासरत हैं
कि हमारे जो गांव में रहने वाले लोग हैं, जहां पर आपदाएं आ रही हैं, तो भूवैज्ञानिक और जो जियोलॉजिस्ट हैं और जो राजस्व की टीम है और जो हमारे एक्शन हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के, तो हमने एक कमेटी गठित की है। और उसके साथ ही हम देख रहे हैं कि हमारे जो गांव हैं उन गांव में जो लोग रह रहे हैं उसका स्टाडा किस तरीके का है और क्यों बार बार लैंडस्लाइड हो रहा है, तो उस पर एक तरीके से बहुत मंथन चल रहा है। तो अभी जितनी भी आपदाएं हमने देखी हैं, तो उसके साथ साथ बहुत सारे गांव में जो लोगों के घर धंस रहे हैं, आपदा के चपेट में जो लोग आए हैं, तो उनको तत्कालिक राहत देने के साथ साथ उनको विस्थापन के लिए भी हम लगातार प्रयासरत हैं। और हमारा एक गांव है कुंवारी, और वहाँ पर लगातार लैंडस्लाइड होने के कारण से तो 52 परिवार वहाँ पर से विस्थापित करने पड़े। और विस्थापन के साथ साथ ही हम देख रहे हैं कि आए दिन लगातार जिस तरीके से वो पहाड़ टूट रहे हैं और नीचे जो नदी है, नदी में डैम भी बन रहा है, और डैम 3-4 सालों से लगातार बनते आ रहा है, जब से लैंडस्लाइड हुआ है, जब से वहाँ आपदा आई है। तो इस बार भी डैम बना है, लेकिन पहले सालों की अपेक्षा इस बार डैम का जो वाटर जो भरा है, जो डैम बना हुआ है, तो उसका काफ़ी पानी रिलीज हो गया है। तो हर साल की तरह से उस पर वॉच किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि ऊपर से मलबा किस तरीके से नीचे को आ रहा है। एक तरीके से पूरा बड़ा किलोमीटरों के हिसाब से पहाड़ी धंस रही है, और वो नीचे शंभू नदी में जाकर कहीं ना कहीं डैम बन रहा है, और उससे जो आगे पिंडर बनती है, पिंडर के बाद जो हमारी सहायक नदियां हैं, तो बाद में गंगा जी में जाके मिल जाती हैं। तो ऐसा लगातार हमारे क्षेत्र के अंदर से कपकोट विधानसभा की जो दूरस्थ गांव हैं, उन गांवों के अंदर बहुत सारे स्थानों पर आपदा आ रही है, और उन आपदाओं से निपटने के लिए हम तत्पर हैं। और हमारी कोशिश है कि आम जनमानस को सुरक्षित करने के साथ साथ जो हमारा भूभाग है, जो हमारी प्रकृति है, इस प्रकृति को भी कैसे हम बचा सकें और कैसे आपदाओं को हम रोक सकें, उसके लिए लगातार प्रयासरत हैं। Some residents and political representatives are now looking for ways to convert this Apada into Afsar. They are proposing that the lake in Kuwari be converted into a tourist spot just like in Nainital. They say that this will attract development in the villages and provide an employment opportunity for villagers. सर, पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जो कुंवारी गांव जो आपके क्षेत्र में पड़ता है, उसमें आप लोग किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं उसको, और किस तरीके से रेजिडेंट्स को परेशानी आ सकती है, बट सॉल्यूशन क्या सरकार निकालने का सोच रही है ये जो लेक बना है? देखिए मैडम, सबसे पहले आपका मैं स्वागत करता हूँ कि जनपद बागेश्वर, उत्तराखंड और विकासखंड कपकोट, जो कि आकांक्षी ब्लॉक भी है, तो आकांक्षी ब्लॉक के जो अंतिम छोर का गांव है कुंवारी गांव है, जो कि चमोली गढ़वाल से लगता हुआ है। इसमें क्या है कि सन 2013 में जो केदारनाथ में भी त्रासदी आई थी, देवी आपदा थी, उसमें आधा गांव हमारा बह चुका था, और 2018 में अवशेष जो गांव बचा था वो भी पूरी तरह ख़त्म हो गया था भूस्खलन से। तो गांव वालों को सरकार ने दूसरी जगह विस्थापित कर दिया था। उस विस्थापन के बाद भी क्या हुआ कि लगातार नीचे शंभू नदी बहती है, तो लगा भू कटाव की उसे भूस्खलन होते रहा। तो फिर पुनः दोबारा सरकार ने नई कार्य योजना बनाई, और हमारे विधायक जी श्री सुरेश गढ़िया जी के माध्यम से शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की वजह से उन्हीं गाँव में दूसरी जगह उनको विस्थापित किया है, जो कि कल ही दिनांक यानी कल आपका 28 तारीख थी, 28 नवंबर 2024 को 54 परिवारों को दूसरी जगह जो है उनका विस्थापन किया गया है, और सरकार द्वारा उनको जो धनराशि मानक के अनुसार मिलती है, और उसके हिसाब से उनको ज़मीन भी अलॉट कर दी और धनराशि भी स्वीकृत की गई। धनराशि सरकार की जो मानक के अनुसार देवी अनुसार है 5 लाख 5.5 लाख के आसपास लगभग मिलता है। तो लेकिन 5.5 लाख में जो है आप समझ सकते हैं, जब ये कोई किसान या कोई ग्रामीण जब दूसरी जगह शिफ्ट होता है विस्थापन में, तो उन्हें क्या है कि 5.5 लाख में मात्र अपना मकान बना सकता है।
जबकि ग्रामीण है तो ग्रामीण क्षेत्र में पशुपालन होते हैं, पशु भी होते हैं, तो वो बनाना संभव नहीं था। और मेन हमारे यहाँ का व्यवसाय क्या है, कृषि और पशुपालन है। तो कृषि और पशुपालन की वजह से वो गाँव छोड़ के दूसरे को विस्थापन नहीं कर पाए। जो लोग सक्षम लोग थे, जो सैलरी या गवर्नमेंट जॉब वाले या अन्य जगहों पे थे, उन लोगों ने, किसी ने हल्द्वानी बनाया, किसी ने भराड़ी बनाया, किसी कपकोट बनाया। 89 परिवार कुल वहाँ पर थे। लेकिन आज जो गाँव में वास्तविक ग्रामीण तौर पे हैं, जिनका पशुपालन कृषि से मोह नहीं छोड़ पाए, वो लोग आज वहीं पर 54 परिवार वहीं पर विस्थापित हो गए। दूसरी बात है, विषय बीच में ग्रामीणों का ये शिष्टमंडल मेरे से मिला, वहाँ के प्रधान और प्रधानपति श्री गुड्डू के द्वारा मेरे को ज्ञापन दिया गया और कि यहाँ पे जो संपूर्ण नदी में प्राकृतिक झील बननी है, जिससे कि लोग कहते हैं कि इससे आने वाले समय में गढ़वाल को भी खतरा होगा, नीचे हरिद्वार तक काफ़ी लंबा जाएगा, क्योंकि लगभग 800 मीटर के आसपास जो है झील लंबी बनी है और लगभग 1 मीटर से 2 मीटर के आसपास गहरी बनी है। तो उनका द्वारा ज्ञापन दिया गया कि बीच में एसडीएम महोदय के द्वारा अपने जियोलॉजिस्ट सिंचाई विभाग के द्वारा वहाँ पर सर्वे और निरीक्षण किया गया। तो जब उनकी टीम यहाँ पर वापस आई तो जियोलॉजिस्ट ने बताया कि झील के तीनों ओर जो है पक्की रॉक है और उस पक्की रॉक की वजह से कोई खतरा वहाँ पर है नहीं। जब कोई खतरा नहीं है तो उन्होंने कहा इस प्राकृतिक जो झील बनी है इसको जो है हम लोग पर्यटन के तौर पर इसको डेवलप कर दें। वास्तव में उनका ये बहुत अच्छा सुझाव था। जब जियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट आई और ये कन्फर्म हुआ कि पक्की रॉक है, तो इसके लिए हमने भी शासन में इसके लिए प्रस्ताव भेजने का प्रोग्राम यहाँ से बना रखा है। क्योंकि वहाँ पर पर्यटन झील बनेगी तो निश्चित तौर पर वहाँ पर पर्यटन बढ़ेगा। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जिस क्षेत्र घाटी में आप स्वयं वास्तव में प्रेस का भी आभार कहता हूँ कि जीरो लेवल पे जाकर आप लोग मेहनत करते हैं। आपने देखा होगा कल जब पिंडर घाटी गए थे, उस पिंडर घाटी में विश्व प्रसिद्ध पिंडारी ग्लेशियर ट्रैकिंग रूट है, विश्व प्रसिद्ध सुंदरढूंगा ट्रैकिंग रूट है, कफनी ग्लेशियर वहाँ पर पड़ता है, बेदनी बुग्याल वहाँ पर पड़ता है और ये प्राकृतिक झील बन जाएगी तो जो गढ़वाल है, चमोली गढ़वाल से लगता है तो बेदनी बुग्याल से जो ट्रैकर आते हैं तो उसके भी निश्चित तौर पर हमारा पर्यटन बढ़ेगा और पर्यटन बढ़ेगा तो हमारे गांव के लोगों को स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार मिलेगा और सरकारी जो मिलेट्स जो हम लोग यहाँ पर मोटा अनाज उगाते हैं तो उससे भी लोगों को फायदा होगा। और मोटा अनाज के साथ सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे यहाँ सब जैविक होता है तो उससे निश्चित तौर पर एक अच्छी मार्केट बनेगी तो वहाँ के स्वरोजगार बढ़ेगा और पलायन भी हम लोगों का रुकेगा। और सरकार की जो प्लानिंग है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, कन्फर्म उनके विस्थापन के जो परिवार गाँव में रह गए थे 54 परिवारों को कल आपको पता है वो राजस्व टीम गई थी, आप स्वयं वहाँ पर गए थे। तो वहाँ पर क्या है कि हमारा रजिस्ट्रार कानून गो और हमारे जो पटवारी जी हैं, राजस्व की टीम ने सबको भूमि अलॉट कर दी है तो वो सुरक्षित भी है, सब सेफ हैं। तो निश्चित तौर पर पर्यटन के लिए हम लोग दृष्टि में इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। थैंक यू सर, हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद बहुत बहुत।